নমস্কাৰ বিশেষ 30 মিনিটলৈ মই নবনীতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি যথেষ্ট আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো এনে এজন অতিথি আমাৰ মাজত আছে যিগৰাকী অতিথি বিশ্ববিখ্যাত এটা পাৰ্সোনালিটি সমগ্ৰ বিশ্বতে তেখেতক চিনি পায় এজন গ্লোবাল সিটিজেন হিচাপে তেখেতৰ পৰিচয় আছে আমি তেখেতক আজি প্ৰাগ নিউজৰ মজিয়াত পাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছো আমি স্বাগতম জনাব বিচাৰিছো সৰোদ সম্ৰাট সৰোদ মাষ্ট্ৰ উস্তাদ আমজাদ আলী খান সাহেব वेलकम टू प्राग न्यूज़ सर सर पहले तो हम आपको क्योंकि आप असम के जमाई हैं तो एक गाँव सा देना चाहेंगे अच्छा थैंक यू सर एंड फ्लावर गिफ्ट फॉर यू सर थैंक यू तो इसको अभी रख दें इधर जी जी सर जी ये भी मैं घर ले जाऊंगा आई थिंक आई विल गिव इट आई विल शो इट टू अमान अयान एंड अबीर एंड जोहान ऑफ कोर्स दे विल बी रियली हैप्पी विद दैट सर आप असम एक कॉज के लिए आए हैं इस बार टू रिसीव एन अवार्ड कमला खैकिया मेमोरियल नेशनल अवार्ड जो आपको दिया जा रहा है सो this is for you have been propagating peace and brotherhood through your music. You're receiving this award. So what are your feelings for Assam at first? Because of course your spouse is from Assam. I will remain be grateful to Assam for my wife Subbalakshmi, and I had the honor of meeting my father-in-law and his elder brother Mr. P.C. Barua and Mr. Parsuram Barua ji, Phunu Barua ji, and all my brother-in-laws. I received love from all my nobos and brother-in-laws, and even now their children are also very kind to me. And also after coming to Assam, I realized the word Namghar. Namghar, ji. You know, then I used to walk in the evening in Sibsagar, and I used to hear this sound of drum. So I used to ask, कहाँ से आवाज़ आ रही है? कहते नामघर से आवाज़ आ रही है. So, and then also I realized the beauty of folk music of Assam, Bihu, and so many songs I play on my sarod now. And receiving this Kamala Sakya award is a great honor, great pleasure, and I will remain be grateful to all the journalists and media person of the country. I got chance to perform in All India Radio also because there was no TV at that time. And I think the role of media and the journalist is so important in the society. You never spoke your sarod was your medium of speech. My relationship is with the sound. और साउंड को हमारे देश में हिंदुस्तान में स्वर ही ईश्वर और एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विथ साउंड एंड रिदम. ये हार्ट बीट जो है ये इंडिकेशन ऑफ रिदम. रेसिटेशन, कन्वर्सेशन, chanting, singing, they are all part of music. My father, who was like a fakir, very simple man, very innocent person, but he used to perform 5 times नमाज पढ़ते थे 5 दफ़ा और पूरे देशवासियों ने उनको बहुत प्यार और बहुत इज्जत दिया. 1960 में उनको पद्म भूषण भी मिला. जी हाफिज अली खान साहब, उस्ताद हाफिज अली खान साहब. हम लोग ग्वालियर के हैं, वी वर बोर्न इन ग्वालियर. उन्होंने हमें म्यूज़िक के साथ साथ ये शुरू से समझा दिया था कि सारे दुनिया का एक ही रब है. we have a common God and we are the common race. क्योंकि इंसान एक ही तरह से आता है, एक ही तरह से जाता है. So in our family, my wife Subbalakshmi, my daughter-in-law Neema Sharma,
Aman, Ayan, we all feel connected with every soul. उस्ताद जी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। में सवाल ये था Yes. क्योंकि आप छठी पीढ़ी हैं, द सिक्स्थ जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस पुलिंग अप, एंड अमान एंड आयान आर टेकिंग इट अप टू द सेवेंथ जनरेशन। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि इतना सब कुछ कंधे पे आ गया है, कभी बोझ जैसा नहीं लगता कि इतना हैवी एक आपके लोगों को इतना भरोसा है आपके ऊपर, या फिर इतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, स्पेशली द कैरिंग आउट द लेगेसी ऑफ म्यूजिक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो इतनी एक लंबी आप लोगों की जर्नी रही है, जनरेशन टू जनरेशन, यू हैव बीन हियर फॉर लाइक पीरियड्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम। देखिए, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि आज दुनिया में देर आर अबाउट 500 सरोद प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे बी 1000 सितार प्लेयर और 5000 तबला प्लेयर्स। जी। अमान और अयान के लिए इट इज़ मोर, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड क्योंकि दे आर ऑल द टाइम पीपल कंपेयर देम विद देयर फादर, यस। नॉट ओनली फादर बट they compare within the brothers also. उस्ताद जी, हम और बातें करते रहेंगे, तब एक ब्रेक ले लेते Okay, हैं। ठीक है। আমি উস্তাদজিৰ এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আৰু এই সুন্দৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটোৰ পিছতে আমি এটা বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিশেষ 30 মিনিট এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আমি লৈ আছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে उस्ताद अमजद अली खान साहब, द सरोद सम्राट। उस्ताद जी, आपके के वक्त जाकिर हुसैन साहब हो या फिर रविशंकर साहब हो, वो सितार और तबला को बेसिकली फ्यूजन म्यूज़िक के साथ और वेस्ट में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। हालांकि आप सरोद को लेकर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ही आपने अपना पूरा वक्त दिया और कभी इस फ्यूजन के बारे में नहीं सोचा। सारे राग हो, तांज हो, उसमें आपने ज़्यादा एफर्ट डाला। तो इसमें आपका व्यू क्या होगा? फ्यूजन, the word fusion has become very common and it's almost like a abuse now, because very many kind of fusion, they are so absolutely, they create confusion. Okay. So I prefer to say that I have done a collaboration. Scottish Chamber Orchestra of Scotland, they wanted me to write, compose for them. So I composed a 45-minute का एक compose मैंने करा for the orchestra,
उसका नाम दिया है मैंने समागम। समागम। समागम जी। समागम हिंदी का वर्ड है, मीन्स कन्फ्लुएंस ऑफ टू कल्चर। यस। तो दिस इज द फर्स्ट सरोद कंचर्टो के सरोद के साथ 50-60 म्यूजिशियन बजाते हैं। मैंने किताब लिखी अभी रिसेंटली ऑन 12 ग्रेट माइस्ट्रोज ऑफ इंडिया हु हैव जस्ट पास्ड अवे, ओके। पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। जी। तो ये 12 म्यूजिशियन वो हैं जिनकी वजह से क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर हुआ, विच इंक्लूड्स पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी जी, कुमार गंधर्व जी। सो 12 लोग हैं, बेगम अख्तर भी हैं, केसर बाई केरकर भी हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ मेरा पर्सनल इक्वेशन था और इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, दीज 12 म्यूजिशियन दे वर द रीज़न ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक की वजह से हमने गज़लें भी कंपोज करी फॉर टेलीविज़न सीरियल के लिए। आशा भोसले जी ने टाइटल सॉन्ग गाया, गुफ्तगू। गुफ्तगू एक आता था, और यू मे कॉल इट ए म्यूजिकल फ्लर्टेशन कि हम गज़ल भी बना लेते हैं और डांस बैले का म्यूज़िक भी करते हैं, और वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक। लेकिन ये क्लासिकल म्यूज़िक जो है इट्स लाइक ए सन, जैसे एक सूर्य होता है और उसकी जो किरणें होती हैं, रेज, तो ये सब रेज रोज़ नए नए जॉनर आते हैं। कोई रैप है, कोई टैप है, कोई ब्लूज़ है, कोई जैज़ है। तो यही है कि जैज़ म्यूज़िक भी लोग कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन जैज़ वालों को फ्रीडम है कि 12 सुरों में वो जो मर्जी कर सकते हैं। वो हमें फ्रीडम नहीं है, हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है वो अगर एक राग में 5 ही सुर लगते हैं, जैसे मालकोस है, तो हम उसी में अगर 6 सुर लगते हैं तो 6 ही सुर का इस्तेमाल करेंगे। आपने अपने खुद के राग भी बनाए हुए हैं? एक राग तो हमने अपनी पत्नी के नाम से बनाया है, राग सुबलक्ष्मी जी। वो चेन्नई में बजाया पहली बार। अच्छा। इट वाज हर बर्थडे नेक्स्ट डे। तो ये लगता था कि भाई शी हैज गिवन मी अमान एंड अयान इन माय लाइफ, हाउ कैन आई, व्हाट शुड आई गिव हर बैक। शी इज अ वेरी लविंग एंड डेडिकेटेड वाइफ। तो वो हमने राग उनको समर्पित कर दिया। तो वो शीर, वो राग की न्यूज़ उन्होंने अखबार से देखी नेक्स्ट डे। अच्छा, उनको पता भी नहीं था? उनको पता नहीं था। आई डिडंट टेल हर। मैंने ऑडियंस में बजा दिया। म्यूजिक एकेडमी हॉल है, 2500 सीट लोग बैठे थे। तो यही है कि म्यूज़िक हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का म्यूज़िक, चाहे वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है या ओपेरा है या कुछ भी है, ये सब 12 सुर के ऊपर ही हो रहा है। चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे क्लासिकल हो, बिहू हो या राजस्थानी हो। तो 12 सुर, ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर लाइक वन फैमिली। कि हम लोग उन्हीं सुरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी लय को हम देख रहे हैं। और एक 13th सेंचुरी में एक सूफी सेंट थे हज़रत अमीर खुसरो। उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और उन्होंने कव्वाली क्रिएट करी, कौल, कलबाना, और एक गाने की स्टाइल बनाई उन्होंने, इसका नाम तराना था। तराना।
जी कई दफ़ा मैंने कई तराने कंपोज करे, जी। लेकिन ये तराना राग बहार में है और इंटरेस्टिंग है ये इसमें। सा प सा सा ताधा रे दानी ताधानी धीम ताना तानो ताधा रे दानी ताधानी धीम ताना तानो तानोम तानानोम ताधे रे ना 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 ताधा रे दानी ताधानी धीम ताना तानो ताना ना 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 धीम ताना ना 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 ताना ना 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 धीम ताना नोम ताना नोम तारना ताना नोम ताधा रे दानी धाकिट तक धुम किट तक धित्ता किट तक धिट तक दिगने दा क्रांदा ताधा रे दानी ताधानी धीम ताना तानो। तो ये एक ऐसी स्टाइल है लाजवाब है जिसमें लैंग्वेज नहीं है, शब्द नहीं है, और विदेशों में हम जब गाते हैं इसे तो इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर एब्सोल्युटली। एंड थ्रू लैंग्वेज यू मैनिपुलेट। मैंने सुना है मेरे दोस्तों से और हमारे बड़े जनों से कि आप फिंगर नेल्स से सरोद बजाते हैं। मोस्ट ऑफ द सरोद प्लेयर्स वो फिंगर टिप्स से बजाते हैं। बेसिकली वी सी दैट इन गिटार ऑल्सो, या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हम देखते हैं। नहीं, फिंगर टिप से सितार बजता है और चैलो बजता है, लेकिन हम लोग जब सरोद प्लेयर फिंगर टिप से बजाता है तो साउंड बंद हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए हमारे जो एज ऑफ माई फिंगर नेल्स, ये फिंगर नेल्स जब हम दबा के तार को बजाते हैं तो इसमें ग्रूव्स हो जाते हैं। अच्छा। उसको हमें फाइल करना पड़ता है। You have to take care of your nails also. बस भगवान ही की जो भी केयर है वही हमारा डॉक्टर है, वही वैद्य है, वही हकीम है, और वही सरोद की रक्षा करता है और हमारी रक्षा करता है। आप लोगों के ग्वालियर वाले घर में अभी आप लोगों ने म्यूजिक सेंटर कर दिया, वहाँ पे म्यूजियम बन गया। म्यूजियम बन गया है वो वहाँ पे। तो आपके पुरखों के सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ रखी गई मेरे है। पिताजी उसी घर में पैदा हुए, मैं भी वहीं पैदा हुआ, और जब हमने बीथोवन का घर देखा बॉन में, जर्मनी में, कि द ग्रेट कंपोजर बीथोवन, तो मैं और वाइफ टिकट लेके लाइन में खड़े हुए थे जी। और अंदर जब गए तो वो दिखा रहे हैं ये उनका पियानो है, ये उनका पलंग है, ये स्लीपर है, ये है, वो है। तो हमने फिर इंडिया में अपने देश की तरफ सोचा कि क्या हमने किसी म्यूजिशियन को प्रिजर्व करा है। यहाँ पर आपके आसाम में तो भूपेंद्र को बहुत अच्छा प्रिजर्व करा है, लेकिन जनरली जो नेता लोग जिस घर में गुजर जाते हैं वो मेमोरियल बन जाता है। फिर जब हम दिल्ली लौटे तो उस वक्त HRD मिनिस्टर थे मिस्टर अर्जुन सिंह। यस। तो उनसे हमने फाइनेंशियल हेल्प मांगी, उन्होंने फौरन सैंक्शन कर दिया, तो वो घर हमारा म्यूजियम बन गया। उसका नाम है सरोद घर। सरोद घर। यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी ग्वालियर जाओ, दिल्ली के पास में है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुला हुआ है फॉर पब्लिक। उसमें हमारे पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारे बड़े बड़े संगीतकारों ने। आपके पूर्वज ही इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आए थे, आई थिंक रबाब। हाँ जी, 200 साल पहले। रबाब अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान से आया था। और उसके बाद फिर वो रबाब से मॉडिफिकेशन हुआ, सरोद बना। सरोद इज ए पर्शियन वर्ड। ओके। इसका मतलब ही म्यूजिक है, मौसीकी नगमा तरन्नुम। मैं थोड़ा सा आपके फैमिली लाइफ के बारे में बस थोड़ा सा जानना चाहूँगी। शुभलक्ष्मी बाइदो के साथ लॉन्ग टाइम बैक ऑब्वियसली आप लोगों के बीच का प्यार कैसे पनपा, वो दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक ऑब्वियसली। मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा था भारतनाट्यम कलकत्ते में। तो उस वक्त मैं मेंटली बड़ा डिस्टर्ब था, बहुत ही परफॉर्म कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, लेकिन कोई स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में। तो वो उनको देख के ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे लिए भेजा है। बड़ी खूबसूरत भी थी, उनकी अदाकारी भी बहुत अच्छी थी। बहुत, शी वाज अ ग्रेट परफॉर्मर एक्चुअली। और उनकी जो गुरु थी रुक्मणी अरुणडेल, जिन्होंने कला क्षेत्र चलाता है। तो उसके बाद फिर मुझे मेरे फादर इन लॉ परशुराम बरुआ जी, PC बरुआ जी,
और सारे हमारे ब्रदर इन लॉज एंड आसाम से हम देखें तो भरतनाट्यम में अपने डिग्री एक्सपोनेंट्स जो है वो एक शुभलक्ष्मी बाइदो है एंड इंदिरा पीपी बोरा इज ये तो एक साथ ही थी दोनों। मैंने सुना कि शुभलक्ष्मी बाइदो टुक सम टाइम टू डिसाइड तो एकाएक वो मानी नहीं। हाँ, टाइम लगा। नहीं, यही समझदारी है। हाँ। क्योंकि एक म्यूजिशियन। पर आप उन्हें रोज फोन करते थे, पूछते थे? हाँ, पूछते थे। और क्योंकि एक कलाकार से शादी करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, और जहाँ जब प्यार हो जाता है तो फिर वो आदमी रिस्क के बारे में सोचता नहीं है। अच्छा। और इसलिए, और हमारे देश में आज़ादी के बाद पूरा देश क्लर्क बन गया। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। आर्ट्स म्यूजिक को वो सप्रेस कर दिया सबको। मिलता था। मतलब भरोसा ही नहीं है कि एक म्यूजिशियन भी कमा सकता संभाल सकता है या कमा सकता है। एक पुराना जोक है कि एक वुड बी फादर इन लॉ इज आस्किंग ए म्यूजिशियन, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। यू आर लकी इनफ। तो पूछ रहा है, बेटा क्या करते हो? कहना, सर मैं क्लासिकल गाता हूँ या बजाता हूँ। ओ वेरी नाइस, ग्रेट आर्ट, बहुत ही प्राचीन विद्या है और उसमें ये है वो है, बट बाय द वे व्हाट डू यू डू? यस, दैट इज अ जोक। बेटी देना है, ये कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा? तो क्लासिकल म्यूजिशियंस का हिस्टोरिकली इमेज ऐसी फक्कड़ रहा है, फकीर लोग रहे। और लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, आज का सिनारो, आज भगवान की कृपा है कि पूरे वर्ल्ड में क्लासिकल म्यूजिशियन किस तरह से रहते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं। और जिम्मेदार कुछ जिम्मेदार है, कुछ जिम्मेदार नहीं है। ये तो वैसे आप लोगों के घर में नोकझोंक होती है एक दूसरे के साथ में? कभी कभी बहुत होती है। अच्छा। लेकिन हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जब हमें एक्सेप्ट करना होता है तो हम लोग चारों लोग मिलकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन, ये वो डिसीजन लेते हैं कि करें या ना करें। जैसे नोबेल पीस प्राइज का जब बुलावा आया, कैलाश सत्यार्थी को मिल रहा था और मलाला यूसुफजई को, तो बोला कि 5 मिनट के लिए बजाना है आपको। तो मैंने कहा, भाई 5 मिनट में हमने तो क्या करेंगे हम आके? फिर घर वालों ने समझाया कि इतना इम्पोर्टेंट ये मौका है, और वो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि ये मौका मिला। और हम लोग गए, अमान अयान हम सब लोग गए। हज़ारों लाखों रुपया हमारे ऊपर खर्च कर दिया उन्होंने, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। लेकिन वो 5 मिनट को पूरी दुनिया ने देखा। वैसे आप तो फ्यूजन में बिलीव नहीं करते, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं, कोलैबोरेशन। तो जैसे यहाँ का म्यूजिक और सरोद के साथ में कोलैबोरेशन किया जा सकता है, या फिर वी कैन गेट टीम ऑफ सरोद प्लेयर्स फ्रॉम असम एंड नॉर्थ ईस्ट आल्सो। नहीं, मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ आपके सिंगर्स जो है, पपोन जो है और वो जुबीन है जी। और मैं तो बजाते ही हूँ, सरोद पे बिहू बजाता हूँ। डा 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 डा। हमने महात्मा गांधी के लिए जो राग बनाया, बापू कौस, उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी पे, तो हमें इनवाइट करा था यूनेस्को ने पेरिस जी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। तो उनके साथ ही हम लोग गए थे। तो हमें वहाँ डायरेक्टर जनरल ने यूनेस्को के गांधी मेडल दिया, और हमने गांधी का ये नया राग वहीं बजाया, बापू कौस उसका नाम रखा। लेकिन उसका जो
स्वर हैं उस राग के, वो सारे बिहू वाले स्वर हैं। Any जिस- message to like give some aspiring sarod players from the northeast? बहुत लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट की साधना करते हैं, उससे यू कांट अचीव एनीथिंग। तो वन हैज टू सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड एंड द गुरु। प्रयास करना है, साधना करना है, और इफ यू वांट टू अचीव योर गोल ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट। थैंक यू सो मच उस्ताद जी। आप अपने बच्चों के पिता ही नहीं, गुरु भी हैं, और साथ में हमारे भारतवर्ष के लिए आप एक बहुत अच्छी उदाहरण है, जो यू विल स्टे बैक इन द लीनिएज। एंड ऑफ कोर्स वी होप दैट हमारे यहाँ से भी ऐसे बहुत सारे सरोद प्लेयर्स निकले जो उस्ताद जी को फॉलो करें, एंड मे बी इन फ्यूचर विल ऑल्सो गेट अ उस्ताद फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच, इतना वक्त आपने दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रिसीविंग द कमला सैकिया अवार्ड अगेन। थैंक यू सो मच।